زمان ٹاؤن تھانے کی دودھ میں دوستوں کے ہاتھوں دوست قتل۔ نورانی بستی میں دل دہلا دینے والے واقعے پر اہل خانہ غم سے نڈھال۔ کہتے ہیں بلال اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا جسے معمولی بات پر چھری اور بلیڈ سے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اہل خانہ نے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی اپیل کر دی۔ شایان علی کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ دوست نے دشمنی کی مثال قائم کر دی۔ معمولی تنازع پر دوستوں نے دوست کو ہی قتل کر ڈالا۔ کورنگی نورانی بستی میں پیش آئے واقعے میں بلال کو چھری اور بلیڈ کے وار سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ واقعہ گزشتہ رات 9 بجے کے بعد پیش آیا جس نے پورے محلے کو سوگوار کر دیا۔ بلال 4 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ چند ماہ قبل ہی روزگار سے وابستہ ہوا تھا۔ غم سے نڈھال اہل خانہ کا کہنا تھا کہ بلال ایک محنتی لڑکا تھا جو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ معمولی بات پر دوستوں کا اس حد تک چلے جانا ناقابل یقین ہے۔ احمد رضا اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے کسی دوست کے ساتھ نیچے گیا، ناصر بھائی کی گلی ہے، اس گلی کے اندر وہاں ان کی لڑائی ہوئی ہے۔ لڑائی ہونے کے تقریباً 9 بجے کے ٹائم ان کی لڑائی ہوئی ہے۔ یہ 2 لڑکے تھے، ایک شہریار اور دوسرے کا عرفان نام ہے۔ تیز دھار کی چیز تھی جس سے وار کیا گیا، چھری کے وار بھی ہیں اور اس کے اندر نا بلیڈ بھی ہیں، یعنی پیچکس وغیرہ بھی ہیں، ان سے وار کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا 3 گھنٹے کے 3.5 گھنٹے کے بعد وہ جاں باز نہیں ہوا۔ تو وہ تو ایسا لڑکا بھی نہیں تھا، فالتو میں کسی سے پنگا بھی نہیں لیتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑے والا بھی سین نہیں تھا اس کا، تو بس بے فضول میں اس کو مارا گیا ہے۔ غلطی انسان کی ایک ہوتی ہے نا چھوٹی سی غلطی، اس کی اتنی بڑی سزا، ہاں اتنی بڑی سزا نہیں دی جا سکتی اس کو نا۔ بہت اچھا دوست تھا ہمارا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا، نہ کوئی فالتو چکر میں نہ کسی چیز میں۔ بس کل ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ ایسے ہوا ہے، بہت غلط ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اہل خانہ نے پولیس سے اپیل کی کہ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ کیمرامین فرحان عابد کے ہمراہ شایان علی، سٹی 21۔ شہر قائد رواں سال ٹریفک حادثات میں کتنے افراد جاں بحق ہوئے، ڈیٹا سٹی 21 سامنے لے آیا۔ مختلف حادثات میں 341 افراد زندگی کی باسی ہار گئے۔ حادثات میں 4800 سے زائد افراد بھی زخمی ہوئے۔ ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کر 111 افراد جان سے گئے۔ اسامہ ملک کی رپورٹ دیکھیں۔ خونی ڈمپرز اور ٹرالر سے حادثات کا نہ رکنے والا سلسلہ۔ شہر قائد میں ٹریفک حادثات کئی قیمتی جانیں لے گیا۔ رواں سال کتنے افراد اپنی زندگی گنوا بیٹھے، ڈیٹا سٹی 21 نے حاصل کر لیا۔ مختلف ٹریفک حادثات 341 افراد کی زندگیاں نگل گئے۔ اسی مدت میں 4800 افراد زخمی ہو کر ہسپتال پہنچے۔ مرنے والوں میں 261 مرد، 35 خواتین شامل۔ 35 بچے اور 10 بچیاں بھی حادثات کی بھینٹ چڑھ گئے۔ دندناتے پھرتے ہیوی ٹریفک نے بھی 111 افراد کو کچل دیا۔ خونی ڈمپر نے 22 افراد کو اپنے ٹائر تلے رون ڈالا۔ ٹرالر سے 43 اور واٹر ٹینکر کے نیچے آ کر 26 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ شہر میں مزدہ نے 10 اور بسوں نے 10 افراد کی زندگیاں چھین لی۔ کیمرامین قمر عابدی کے ساتھ اسامہ ملک، سٹی 21۔ رواں سال آتش زدگی کے 1000 سے زائد واقعات رپورٹ۔ محکمہ فائر بریگیڈ نے شہر میں آتش زدگی کے واقعات کی رپورٹ جاری کر دی۔ شہر میں آتش زدگی کے 90% واقعات شارٹ سرکٹ کے باعث رونما ہوئے۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیں۔ کراچی میں آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ۔ رواں برس شہر میں 1000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے۔ محکمہ فائر بریگیڈ نے رپورٹ جاری کر دی۔ جنوری میں 267، فروری میں 203، مارچ میں 256 آتش زدگی کے واقعات ہوئے، جبکہ اپریل میں 232 مقامات پر آگ لگنے کے واقعات سامنے آئے۔ آتش زدگی کے سب سے زیادہ واقعات ضلع جنوبی میں رپورٹ ہوئے۔ سپر ہائی وے، کیٹل کالونی، نیو ٹرک اسٹینڈ، ERC، ہاکس بے کے اطراف آتش زدگی کا ایک بھی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شعیب مختار، 24 نیوز، کراچی۔ شادی کے بعد گھر بیٹھ جانے والے خواتین، ڈاکٹر اور دیگر کے لیے خوشخبری ہے کہ اب وہ گھر بیٹھ کر پریکٹس کر سکیں گی، جس سے وہ خود بھی فائدہ اٹھا سکیں گی اور مریضوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اس حوالے سے ڈاؤ یونیورسٹی کی قائم مقام وائس چانسلر اور دیگر ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کرتے آگاہ کیا۔ ابراہیم رند کی رپورٹ دیکھیں۔ شادی کے بعد گھر بیٹھ جانے والی لیڈی ڈاکٹرز کے لیے اچھی خبر، خود بھی فائدہ اٹھا سکیں گی، مریضوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ ملک میں آن لائن شعبوں کا بڑھتا رجحان، آئی ڈاکٹر ڈیجیٹل دنیا میں اگلا قدم۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی قائم مقام وائس چانسلر پروفیسر جہاں آرا کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد گھر بیٹھ جانے والی خواتین ڈاکٹرز اور دیگر ڈاکٹروں کے لیے خوشخبری ہے کہ ڈاکٹرز اب گھر بیٹھ کر پریکٹس کر سکتی ہیں، جو کہ ان کی آمدنی کا ذریعہ بن سکے گا۔ اور
दूसरों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। डिजिटल तरीके से हमने इनको एक ऑनलाइन क्लासेस दी, हमने इनको मौका दिया कि फिजिकल हैंड्स ऑन स्किल्स भी सीखें। वो स्किल्स हमने इनको ऑनलाइन भी सिखाई और फिजिकली हमने अपने डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में बुला के इनको ट्रेनिंग दी। ना सिर्फ डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, हमने इनको कनेक्ट किया जिन एरिया में रहते हैं वहाँ की क्लिनिक से, वहाँ के हॉस्पिटल से, कि वहाँ जाएं और जाके अपनी इंटर्नशिप करें, जिसको हम एक हाउस जॉब कहते हैं। इस तरह की एक इंटर्नशिप अटैचमेंट करें जहाँ ये क्लिनिकल स्किल्स लर्न करें। डॉक्टर्स का मुश्तरका बयान था कि आई डॉक्टरल 2.0 डिजिटल तरक्की का अगला कदम है। प्रोग्राम के तहत खवातीन डॉक्टरों को जदीद ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स, पार्टनर्स क्लिनिक्स में मुशाहिदती तरबियत, वर्चुअल क्लिनिक्स तक स्मार्टफोन्स हैं। ये फीमेल डॉक्टर्स वापस आ जाएंगी। नंबर 2, ये फीमेल पेशेंट्स को ऑनलाइन थ्रू टेली मेडिसिन और टेली हेल्थ केयर सर्विसेज उनकी हेल्प करेंगी। फार फ्लंग अंडर सर्व्ड एरियाज में काम करेंगी, इनकी अपनी कैपेसिटी बिल्ड होगी। इस तरीके से हम सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स अचीव कर सकते हैं। विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल देखा जाए तो हमारी जो फीमेल डॉक्टर्स आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुकी हैं वो इन प्रैक्टिस आ जाती हैं। अगर हम अपनी कम्युनिटी, अपनी पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनका भी फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। इस थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ वो मेजर इश्यूज़ को एड्रेस कर पाएंगे, लेकिन उनको ये भी पता होगा कि किस पॉइंट पे उनको एक स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करना है इस पेशेंट की केयर में, जहां डाउ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी उनके साथ ऑन बोर्ड रहेगी। डॉक्टर्स का कहना था कि आई डॉक्टर फेज 2 न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लिए खवातीन की क़ियादत में डिजिटल AI से निज़ाम का एक काबिल तलकीद मॉडल बनने जा रहा है। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रेंज से T21। इंटरमीडिएट के इम्तहानात जारी, असातिज़ा गैर महफूज हो गए। असातिज़ा को नामालूम अफराद की जानिब से सदुकूब किए जाने के वाक़यात में इजाफा। असिस्टेंट प्रोफेसर जमशेद हाशमी पर नामालूम अफराद की जानिब से बंदूक तान ली गई। इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखें। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तहानात जारी। सिक्योरिटी की नाकिस सूरत हाल से असातिज़ा परेशान। सिक्योरिटी की कमी से सिराजुद्दौला गवर्नमेंट कॉलेज के बाद जिन्ना गवर्नमेंट कॉलेज के असातिज़ा भी खौफ में मुब्तला। असिस्टेंट प्रोफेसर जमशेद हाशमी को नामालूम अफराद ने पिस्तौल दिखाकर धमकियां दी। पेपर मुकम्मल करने के बाद अपने डिपार्टमेंट में जो है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में रेस्ट कर रहा था, तो तकरीबन जो है ना 12:45 बजे जो है 15 से 20 लड़के जो है ना वो मेरे डिपार्टमेंट में दाखिल हुए। इनमें से एक लड़का आगे बढ़ा, उसने जो है ना वो अपने पहले मुझे बोला कि आप है ना ड्यूटी ना करें, तो उसके बाद उसने जो है ना अपनी शलवार से जो है ना पिस्तौल निकाला और उसको लोड करके मेरे सीने पर रखा और मुझसे कहा कि मैं 1 मिनट में तुझे उड़ा दूंगा। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध नवीद रब सिद्दीकी कहते हैं मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। जी ये तो प्रिंसिपल साहब बताएंगे और जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बताएगी। मैंने अभी तक कैमरे तो नहीं देखे, लेकिन यकीनन इनसे मदद मिल सकती है। वो लोग कौन थे वो मेरे ख्याल है यहाँ से उन्होंने रब्ता भी किया है और माफ़ी तलाफ़ी के लिए भी लोग आए हैं। लेकिन ये मैंने पहले भी इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की थी। हमारे असातिज़ा जो हैं वो बेचारे बड़े वल्नरेबल हैं, मासूम, मतलब इनका काम सिर्फ पढ़ना पढ़ाना है। अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ इनके साथ होंगी तो फिर कौन महफूज रहेगा और ये बच्चों पे क्या असर इसका पड़ेगा ना। इम्तिहानात के 9वें रोज़ आज सुबह की शिफ्ट में 12वीं जमात के रियाजी का पर्चा लिया गया। DG कॉलेजेस सिंध ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। महीनों से जारी ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बावजूद तजावुज़ात का खात्मा न हो सका। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने बड़ी बैठक लगा दी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। तजावुज़ात का मुस्तकिल खात्मा कैसे किया जाए, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की जेर सदारत इजलास में अफसरान ने सर जोड़ लिए। ताहा सलीम बोले ज्यादा से ज्यादा मुकदमात और जब्त शुदा सामान की वापसी का सिलसिला शुरू किया जाए, जबकि पुलिस भी अपना किरदार अदा करे। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हुमैर अहमद ने कहा कि शाहराहों को मॉडल बनाने के लिए तजावुज़ात का दूर रस नताइज के साथ खात्मा करेंगे। उसमें हमने 2-3 चीज़ों पे बात की। एक तो कि कानूनी कार्रवाई की जाए जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं। एक तो बंदा एक दफ़ा होता है उसको समझाते हैं, दूसरी दफ़ा समझाते हैं, लेकिन अगर बार बार वो ये काम कर रहा है तो उसके ऊपर तो वी नीड टू एक्ट, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने ये भी सोचा है कि हम ये जो सामान उठाया जाता है इसको फ़ौरन वापसी करने की रिवाज है इसको डिस्करेज करें। बिकॉज होता ये है कि आपने उठाया वो वापस गोदाम तो पहुँचे नहीं, वो सामान वापस करना पड़, ये सारी चीज़ें इससे तो कम नहीं होगा।
चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने तजावजात के खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती का भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलबर्ग हमीदुल्लाह सुहाग ने भी तजावजात के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशों का अदा किया। हमारे हैंड पे जो भी जिम्मेदारी होती है हम KMC से मिलकर जो है इंक्रीमेंट हम करते हैं। देखिए एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिस तरह से DC साहब ने कहा है कि हम सब टाउन को एक जगह जमा होकर जो है इसको एक प्रॉपर एक जो है तरीके से ऑपरेशन करना पड़ेगा और FIR काटवानी पड़ेगी। तो एज पर DC साहब के हुक्म के मुताबिक इंशाल्लाह हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपके सामने अभी डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो हिदायत जारी की तमाम एसीज को एज ए फोकल पर्सन बना दिया इंक्रोचमेंट के हवाले से, वो तमाम अपने एसीज जो अपने एरिया के अंदर जो KMC की टीम है या TMC की टीम उनके साथ ऑपरेशन करेंगी। एक वेयर हाउस बना दिया गया है जिसके अंदर सिर्फ जा सकता सामान आ नहीं सकता। पुलिस को भी पावन किया गया है कि पुलिस वहाँ पर 24 आवर्स अपनी वहाँ पर फराइज अंजाम देगी। इस सारे तजावजात के हवाले से बुलाए गए इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, KMC और टाउन्स के महकमा इंसदाद तजावजात के अमले और म्यूनिसिपल कमिश्नर शरीक हुए। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। गैस मसाइल से सताए शहरी रिलीफ के मुंतसिर हैं। LPG सिलेंडर ने अखराजात बढ़ा दिए हैं तो वहीं एलानिया लोड शेडिंग मामूलात ज़िंदगी में खलल पैदा कर रही है। आपको अपडेट करें, गैस बिजली के मसाइल से सताए शहरी रिलीफ के मुंतसिर हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। बड़े शहरों के बड़े मसाइल। कराची के बासियों की गैस बिजली की लोड शेडिंग से जान ना छूट सकी। मलिर, कोरंगी, औरंगी टाउन, मार्टन क्वार्टर समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासर। शहरियों का कहना है कि गैस न होने के सबब होटलों से भी खाना और नाश्ता लाने पर मजबूर है। साथ ही LPG सिलेंडर का सहारा लेना पड़ता है जो जेब पर भारी पड़ता जा रहा है। सबसे पहली बात आप देख लेंगे बिजली की, जो गैस ना भरते हैं उनके साथ साथ जो गैस भरने वाला है वो भी बेचारा पिस रहा है। लाइट होती नहीं है अमूमन, यानी कि बिल इनको पूरा पे करना होता है। और गैस के मामला भी कुछ ऐसे ही हैं कि गैस दोपहरी में होता है, गुजारा इस तरीके से किया जाता है कि कभी होटल से लाना पड़ जाता है या कभी गैस थोड़ी बहुत आती है या कभी सिलेंडर भरवाना पड़ता है। तो इस तरीके से मामला जो चल रहे हैं बस। गैस नहीं आ रही होती दोपहर के अंदर, सिलेंडर पे गुजारा करते हैं, क्या करें, महंगाई इतनी है। दूसरी जानब शहर में एलानिया लोड शेडिंग जारी है जिसके बायस कैदाबाद, मलिर, कोरंगी, नॉर्थ कराची समेत बेशतर इलाकों से बिजली की लोड शेडिंग की शिकायत सामने आई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर के 30% इलाकों में KE की वेबसाइट पर दिए गए शेड्यूल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है, जबकि शहर के 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है। कैमरामैन हसन जाफी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली 5 रुपये 2 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त जमा करा दी गई। कराची के ताजरों ने खुशाइंद इक़दाम करार दे दिया। ताजरों का कहना है कि बिजली सस्ती होने से कारोबारी लागत में वाज़े कमी आएगी, जिससे तिजारती सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। काबिश मेहमन की रिपोर्ट देखें। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए 2 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त, ताजिरों ने फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान का कहना है कि अगर बिजली की कीमत में कमी होती है तो इससे न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि मुल्क की मईशत को भी फरोग मिलेगा। इनके मुताबिक बिजली सस्ती होने से कारोबारी लागत में इजाफी कमी आएगी, जिससे तिजारती सरगर्मियां तेज होंगी। ये खुशाइन बात है कि 5 रुपए 2 पैसे की कमी होने जा रही है और मैं तो उम्मीद करूँगा कि आइंदा महीने 10 रुपए 2 पैसे की और कमी की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो आवाम को जब रिलीफ मिलेगा तो हमारी मईशी हालत भी अच्छी होगी और हमारा जो कारोबार का पहिया है वो भी चलेगा। हम जैसे गारमेंट्स का काम करते हैं, वहाँ फैक्ट्री चलती है, वहाँ पे प्रोडक्शन होती है, तो वो रेट जो है इंक्रीज होने के बदले डिक्रीज होंगे तो आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। सदर ऑल कराची ताजर अलायंस आसिफ गुलफाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कम से कम बिजली 10 रुपए फी यूनिट तक सस्ती होनी चाहिए। महंगी बिजली कारोबार के लिए भी सबसे बड़ी रुकावट है। कम से कम 10 रुपए की समरी जो है वो जानी चाहिए थी। इस बिजली के नरखों में कमी होनी चाहिए थी। जो इस वक्त कारोबारी सूरत हाल है, इस वक्त ज़रूरत है कि बिजली अगर कम होगी तो मुल्क का पहिया चलेगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ताजिरों को कहना है कि महंगाई और बुलंद पैदावारी लागत की वजह से सनतें दबाव का शिकार हैं। ऐसे में बिजली की कीमतों में कमी एक मुस्बत पेशरफ्त होगी जो सनती और तिजारती तरक्की की राह हमवार करेगी। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन मिला जुला रुझान इंडेक्स 39 पॉइंट्स मामूली कमी के बाद 1,18,536 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक सीज फायर के बाद ज़बरदस्त रिकवरी देखने में आई। काबिश मेहमन की रिपोर्ट देखें।
पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान। इंडेक्स मामूली 39 पॉइंट्स कमी से बंद हुआ। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 1,19,460 पॉइंट्स जबकि कम तरीन सतह 1,18,148 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर 451 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 207 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में इजाफा जब 191 में कमी और 53 में इस्तेकाम रहा। स्टॉक माहिर शहरियार भट्ट का कहना है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान मार्केट 1,03,000 पॉइंट्स की सतह तक गिर गई थी। ताहम सीज फायर के बाद जबरदस्त रिकवरी देखने में आई है। सिर्फ 2 तिजारती सेशंस में इंडेक्स में 11,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। लेकिन जब से इंडिया पाकिस्तान टेंशन हुई थी उसके बाद मार्केट गिरने के बाद 1,03,000 की सतह तक गिर गई थी। सीज फायर के बाद मार्केट में हम रिकवरी देख रहे हैं और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में अराउंड 11,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हम विटनेस कर चुके हैं। और मार्केट जब इतना ज़्यादा पॉइंट बढ़ जाती है और स्पेशली अपने रिकॉर्ड है जो 4 अप्रैल 2025 को हमने 1,20,796 का बनाया था, मार्केट वहाँ रिस्क कर रही है। मार्केट एडजस्टमेंट की फेज से गुजर रही है और सरमाएकार प्रॉफिटिंग करने को तरजीह दे रही है। माहिर स्टॉक जिब्रान सरफराज के मुताबिक पाक भारत कशीदगी में कमी के बाद इंडेक्स मजमूई तौर पर मजबूत सिमत में जा रहा है। तज्ज़ियाकार अरसलान अहमद ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों में मार्केट तकरीबन 18% इजाफा देखने को मिला है, जो इस बात का सबूत है कि सरमायाकारों की दिलचस्पी बहाल हो रही है। मार्केट देख रहे हैं काफ़ी वोलेटाइल है। पिछले 3-4 दिनों में 18% के अराउंड मार्केट बढ़ चुकी है। तो यही वजह है कि मार्केट अभी जो है ना जिस तरह से बिहेव कर रही है उसे यही लगता है कि सरमायाकार जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है उसको अवेल करते हैं और जो है ना वो फोकस किए हमें कि बजट के अंदर किस तरह की जो है रिलैक्सेशन दी जाती है उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। पाक भारत जब से कशीदगी हुई कम हुई है तो इसके बाद तकरीबन 10,000 पॉइंट पहले दिन और कल 1,200 पॉइंट और आज भी जो इंडेक्स वो पॉजिटिव है। तो ऑल सेक्टर पॉजिटिव। अब रिजल्ट का सेशन जो है उस पर डिपेंड करता है। माहिर के मुताबिक सीज फायर, मुआशी इस्तेहकाम और सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद मार्केट में हालिया बेहतरी की बड़ी वजूहात हैं। अगर ये रुझान जारी रहा तो आने वाले दिनों में इंडेक्स मजीद बुलंदियों को छू सकता है। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। तेल गैस ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए 10 ब्लॉक्स पर बड़े पैमाने पर लाइसेंस अवार्ड कर दिया गया। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में ज़खायर दरियाफ्त पर काम किया जाएगा। माड़ी एनर्जीज ने कुदरती ज़खायर ब्लॉक्स की वर्किंग तफसीलात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल कर दी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। तेल और गैस ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए 10 ब्लॉक पर बड़े पैमाने पर काम शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में वाक़े ब्लॉक से तेल और गैस के ज़खायर वाफिर मिकदार में दरियाफ्त किए जाएंगे। माड़ी एनर्जीज ने कुदरती ज़खायर ब्लॉक्स की वर्किंग तफसीलात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल कर दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वाक़े 8 ब्लॉक से ज़खायर की दरियाफ्त पर काम होगा। माड़ी एनर्जीज खत के मुताबिक पंजाब और सिंध में वाक़े एक ब्लॉक से ज़खायर हासिल किए जाएंगे। खत में बताया गया कि ज़खायर दरियाफ्त के लिए माड़ी एनर्जीज, OGDCL, तुर्किश पेट्रोलियम गवर्नमेंट होल्डिंग लिमिटेड कंपनी का जॉइंट वेंचर है। कंपनी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम कंपनियों को ज़खायर की दरियाफ्त के लिए लाइसेंस का इजरा कर दिया है। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर से मुस्बत आशारिये। शेयर सूद कम होने पर गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। रवा माली साल 10 माह में गाड़ियों की फरोख्त 40% इजाफे से 1,11,000 से तजावुज़ कर गई। मोटरसाइकिलों की फरोख्त में भी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। मईशत में बेहतरी के बाद ऑटो सेक्टर से भी अच्छी खबरें। शरह सूद कम होने पर गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 25 की 10 माह में गाड़ियों की फरोख्त में 40% का जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गाड़ियों की फरोख्त 1,11,332 तक पहुँच गयी, जो गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में गाड़ियों की फरोख्त 79,553 थी। अप्रैल 25 में गाड़ियों की फरोख्त माहाना 5% कमी जबकि सालाना 1% का इजाफा हुआ। 10,596 गाड़ियां फरोख्त हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 25 में मोटरसाइकिल और रिक्शे की फरोख्त 26% इजाफे से 1,35,721 रही, जबकि अप्रैल 24 में मोटरसाइकिल और रिक्शे की फरोख्त 1,0759 रही थी। पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन मशहूद खान का कहना है कि ऑटो सेक्टर की फरोख्त में बेहतरी की अहम वजह रुपए की कदर में इस्तेहकाम, शरह सूद में कमी और माशी बेहतरी की नवीद बना है। तो एक तो ट्रेंड आप देख रहे हैं, इसके जो बुनियादी वजूहात हैं, एक तो डॉलर आपका स्टेबल हुआ है, आपकी इकोनॉमी थोड़ा सा बेहतर हुई है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। सबसे बड़ा आपका इंटरेस्ट रेट जो 22% था इस वक्त 11% पे आया है। ये 3 बेसिक एलिमेंट हैं जिस वजह से इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा बेहतरी नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 25 में ट्रैक्टर की फरोख्त 48% कमी से 1602 यूनिट रही, जो अप्रैल 24 में ट्रैक्टर की फरोख्त 3,083 यूनिट्स रही थी। अप्रैल 24 के मुकाबले में अप्रैल 25 में ट्रक और बसों की फरोख्त 127% इजाफे से 520 यूनिट रही। ऑटो सेक्टर माहिरीन का कहना है कि अगर बजट में अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई तो ऑटो सेक्टर में मजीद बेहतरी आ सकेगी। अशरफ खान, सिटी 21।
सिंध हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। तालीम में ग्रेड 16 के ऑफिस असिस्टेंट को तरक्की न देने का केस। अदालत ने महकमा तालीम को मुतासरा मुलाजमीन की अपीलें 7 रोज में सुनने की हिदायत कर दी। अदालत ने दरखास्त गुजारों की जानिब से दायर दरखास्त को खारिज कर दिया। अब तक तरक्की न दिए गए मुलाजमीन की प्रमोशन के अहकाम पर अमल दरामद भी रोक दिया। सिटी कोर्ट में सहूलियात का फुकदान और मसाइल के हल के लिए दरखास्त। हाई कोर्ट ने कराची बार, सिंध हाई कोर्ट बार, सिंध हुकूमत, फोकल पर्सन IG सिंध और दीगर से तजावीज़ तलब कर ली। स्टील मिल्स के हज़ारों मुलाजमीन को बरतरफ करने का केस। सिंध लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने लेबर कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। लेबर कोर्ट ने मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला दिया था। सूबे भर में एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस न मिलने का मामला। हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एयरपोर्ट हमला केस। मुल्जिमा गुलनिसा और जावेद अदालत में पेश। मुकदमे की फुटेज और रिकॉर्डिंग पेश न करने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार। ATC की खुसूसी अदालतों के खिलाफ 6 मुल्जमान की अपीलें। जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चारों अपीलें मुस्तरद कर दी। लियारी ऑपरेशन के दरमियान पुलिस पर हमला केस। गैंग वॉर सरगना उजैर बलोच के खिलाफ धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असला एक्ट केस का फैसला महफूज। मुकदमे का फैसला आइंदा माह के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। बांग्लादेश से बरास्ता दुबई पाकिस्तान आने वाले शहरी से इंडियन करेंसी बरामदगी का केस। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद कमाल की 3 लाख रुपए में जमानत मंजूर कर ली। लापता अफराद की बाजियाबी का केस। अदालत ने केसेस मिसिंग पर्संस के कमीशन में भेज दिए। अदालत ने नॉर्थ नाज़िमाबाद से 23 साला अंशारा बतूल की गुमशदगी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि ये केस मिसिंग पर्संस की फहरिस्त में नहीं आता, जबकि पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदाबाद की हुदूद से लापता मोहम्मद नवीद खान बाहिफाजत घर वापस आ गए हैं।